Hello everyone, Namaste. Once again we are here to learn that is the important part of speech. Last time we are already talking about that there are the some words we are just using them in the proper sentences. If you have the good knowledge you can just use them in our daily communication, and that is the part of the great conversation. Actually, if you are just thinking about that, while we are just thinking about the grammar first, कि ग्रामर के बारे में हम लोग जब भी बात करते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड्स है जिनको यूज़ करना हमें आना चाहिए, उनका मीनिंग प्रॉपर पता होना चाहिए। तो कल हमने देखा था कि एडजेक्टिव कैसे बनाया जाता है, ठीक है। एडजेक्टिव को कैसे पहचाने, बिकॉज देयर इज ऑल्सो द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। इफ़ यू जस्ट नो दैट द विच वर्ड्स आर कॉल्ड एज एडजेक्टिव, दोज आर जस्ट गिविंग द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन। हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे ऐसा ही एक वर्ड जिसके बारे में हम लोगों को पता होना जरूरी है। सो लेट्स सी, टुडे चैप्टर इज अबाउट द एडवर्ब। Adverb. See that this word is also very important. Actually, while we just speaking in English, that time there are some words, those are just included in some kinds of the sentences there, but we should know that what is the perfect identification of such kinds of the words. For your better understanding, I would like to explain here. Those words are showing the activity showing the activity of the speaker. If you are talking about any noun, and if you want to show the just to give the more information about the activity, that time just it is called as a adverb. Activity means what is just going to show the activity. It happens with when, then, where, then, how, then how many. Okay, such kinds of the words also you will just find the response in that time. If you are just asking the question your when, where, how and how many, then you will get the answer, and that answer is also included with the adverb. It is showing that yes, there is the activity which just giving the more information about the adverb. So what is the important thing and what is the difference between adverb and adjective? Remember one thing, that is, for example, last time we already talking about adjective. Adjective talk just giving the more information about noun. Keep it in mind. हाँ, हमेशा ध्यान में रखो, एडजेक्टिव हमेशा नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है और एडवर्ब हमेशा एक्टिविटी के बारे में बताता है. सो सी द डिफरेंस. This is the difference. That's why I am telling you there are some words. X is also showing the activity. मतलब वो कुछ ना कुछ कर रहा है ना, मतलब पहले सेंटेंस में वो बातें कर रहा है या बोल रहा है, बराबर है. रोहन यहाँ पे चल रहा है. So you can see there रोहन की एक्टिविटी क्या है? Walking is the activity. In you will find in the first sentence speaking is the activity. Okay? लेकिन वो कैसे है, मतलब वो कैसे बोलता है, वो कैसे बोलते हैं, तो यहाँ पे दिया है वर्ड रैपिडली. सो इट कम्स विथ द सफिक्स एंड दैट इज ly. हाँ, ये वर्ड शो करता है कि वो एडवर्ब है. मतलब एडवर्ब को पहचानना कितनी सिंपल बात है. आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो एक्टिविटी है वो रैपिडली है. मतलब वो अगर वर्ड के लास्ट में ly आता है, वो सफिक्स आता है, तो उसको कहते हैं एडवर्ब, बिकॉज दिस वर्ड शोज the giving the more extra information about the activity. You will find in the second sentence. दूसरे सेंटेंस में आप लोग देख सकते हो कि walks है, वो चलता है, लेकिन कैसे चलता है? वो slowly चलता है. So activity show that कि उसकी एक्टिविटी कौन सी है? चलने की एक्टिविटी. वो कैसे, मतलब धीरे से चलता है या बहुत जल्दबाजी में चलता है, तो ये एक्टिविटी को शो करता है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्लोली ये जो वर्ड है ये होता है एडवर्ब. ओके, तो ये स्लोली कनेक्ट विथ द एक्टिविटी वॉकिंग. ओके, लेकिन तीसरे सेंटेंस में आप लोग देखोगे कि टुमारो आई विल एक्सप्लेन. अभी यहाँ पे एक बात है, आप देख सकते हो यहाँ पे टुमारो मतलब कल, आई विल एक्सप्लेन, हाँ मैं वो बात को मतलब कल बताऊंगा या एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, अभी एक्सप्लेनिंग इज द एक्टिविटी बट इट डिपेंड्स ऑन द टाइमिंग. ओके, not going to, you are not going to explain today. It is showing that tomorrow.
today, tomorrow, yesterday, these words are also showing the time. That's why जैसे मैंने पहले लिखा था यहाँ पे, कैसे क्वेश्चन पूछो, आंसर जो मिलेगा वो एडवर्ब होगा। उसके बाद में कब पूछो, जो आंसर मिलेगा वो एडवर्ब होगा, बराबर। वेयर, कहाँ पे पूछो तो यू विल आल्सो गेट द आंसर। सिंपल है। हाउ, कैसे, बराबर ना। सो ऑलरेडी वी हैव written here how many. Okay, how many. So these words you can ask the any question with the help of these words. Okay, ये WH words है, इनको लेकर आप कौन सा भी क्वेश्चन पूछो, जो आंसर मिलेगा वो तो एडवर्ब को प्ले करेगा। फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस में आप देख सकते हो, टुमारो, टुमारो इज शोइंग द टाइम। आपको पता है हाउ हमेशा कैसे पूछते हैं हम लोग, वेन को टाइम जब रहता है उस टाइम पूछते हैं, प्लेस है तो वेयर पूछते हैं। इस तरह से एडवर्ब को शो किया जाता है। अभी हाउ मैनी का एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल शी हैज वेरी फ्यू, शी हैज वेरी फ्यू अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, इस तरह से अभी सेंटेंस बना दिया। तो यू कैन सी देयर फ्यू, फ्यू मीन्स बहुत ही थोड़ा सा, मतलब कितने, तो वेरी फ्यू। सो दिस इज ऑल्सो शोइंग, दिस इज ऑल्सो शोइंग दैट एडवर्ब। ओके, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू एडवर्ब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप नाउन को समझ लेते हो, एडवर्ब को समझ लेते हो, एडजेक्टिव को समझ लेते हो, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच में ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते। मतलब जब भी हम लोग एक एक वर्ड को यूज करना शुरू कर देते हैं, देन यू आर जस्ट हैविंग द प्रैक्टिस वेरी वेल, सो यू कैन मेक द लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू जस्ट कीप इट द नॉलेज। एक्चुअली मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए, एक एक वर्ड पे बनाए। मेरा एक एक वीडियो पे बना, एक एक वर्ड पे वीडियो बनाने का मतलब ही वही था कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एक वर्ड को एक बार समझ लेते हो तो आप उसको अच्छी तरह से यूज़ कर पाओगे। होता ये कि बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत सारे एग्जाम्पल मैं नहीं ले सकता, क्योंकि बहुत छोटा टाइम होता है, 8 या 10 मिनट का वीडियो बनाना होता है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस नहीं ले सकता। लेकिन आपको एक बार इसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो गया तो आप बहुत सारे सेंटेंस को किसी भी किताब से या किसी भी आपके एक्सरसाइज बुक से उनको ढूंढ के आप प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर सकते हो। इसलिए मैंने बताया कि नाउन कैसे पहचानना है, एडवर्ब को कैसे पहचानना है, एडजेक्टिव को कैसे पहचानना है। ये तो हो गया आइडेंटिफिकेशन, इनको प्रॉपर आप लोग यूज भी कर सकते हैं। आफ्टर ऑल देयर इज अ नीड ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितना आप अच्छी तरह से करोगे, छोटे छोटे सेंटेंस बोलने की कोशिश करोगे, तो आपका इंग्लिश का नॉलेज बढ़ता जाएगा। फिर आपको भी इंटरेस्ट लगने लगेगा कि या तो while you are just thinking in Marathi, for example, in Hindi also, in your local language. After all, English is a third language. If you are using as a second language, then you will have that habit to speak in English. तो इसीलिए मैंने बोला कि एक वर्ड का हमको आज नॉलेज मिल गया, तो उसी वर्ड को हम लोग डेली कम्युनिकेशन में यूज़ करेंगे। अगर करते जाएंगे तो अच्छी तरह से आपकी प्रैक्टिस होगी। तो प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो गई तो फिर आपको अंडरस्टैंड भी अच्छा होगा। तो इस तरह से आज के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा एडवर्ब को कैसे यूज़ करना है। अंडरस्टैंड? सो यूज़ द एडवर्ब, use the adjectives, use the noun. So if you are just using them very properly at the proper places, then you will have that confidence. That's why आज के चैप्टर में हम लोग एडवर्ब के बारे में पढ़ा। शायद आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आपके अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। रिमेनिंग पार्ट विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।